CCRS की एक यूनिट पहले यहाँ पे है, OPD है, बट दिस इज दी पंचकर्म फैसिलिटी, रेसिडेंशियल भी है। अब अभी हम शुरू कर देंगे। वी सर आ रहे हैं, हमें ऐसे बैठे जो सर जस्ट फॉर ऐसे मत 3000 पेशेंट, लेकिन फॉर्मल आपकी अनुमति से मोबाइल एग्जैक्ट मैसेज शुड गो विद द सेम मॉडल ऑफ इंटीग्रेशन शुड बी रिप्लिकेटेड ऑल्सो। तो ये पीछे पीछे मैम मैम पीछे हट जाइए उधर आ जाइए, सामने आ जाइए। मैम मोबाइल थोड़ा पीछे सर Thank you, sir. Thank you, sir, for doing the This is the Honorable Minister, Sir Sarbanand Sonowal ji, Minister of State Ayush. It is a historical day that 4 honorable ministers are here in the campus of Southern Hospital. I really welcome you, sir, from core of my heart, and look forward that with your blessing, Southern Hospital and All India Institute of Ayurveda will definitely work together. Rather, I'll say that they will complement each other. I understand that there are certain needs of our when we look forward alternative treatment, all the treatment, particularly for the chronic disease or for orthopedic disease, neurological disease, dermatological disease. Our friend in Ayurveda have a very good treatment available, and that is why our doctors are now referring the patient when they are in need of such treatment. So they are really being benefited. So that is the aim, that we should not get away from each other, rather we should come together and bridge the gap and work together so that the benefit reaches to the patient. So I really welcome the Ayurveda, All India Institute of Ayurveda in our campus. I also welcome dignitaries, the Secretary Ayush, Dr. Rajesh Koteta ji, Dr. Atul Goyal, DHS, and many other dignitaries from Ministry of Ayush, All India Institute of Ayurveda, and of course faculty and friends from Southern Hospital. Thank you very much. Sanat Atithi, the host of the entire program, was more facilitated to have the integration with Ayurveda and conventional medicine. Honorable Dr. Mansukh Mandaviya ji, Minister of Health and Family Welfare and Chemical and Fertilizers, our own Minister of Ayush, Sri Sarbanand Sonowal ji, Honorable Union Minister of Ayush and Ports and Shipping and Waterways, Dr. Munjapara Mahendra Bhai Kalvibai ji, Honorable Minister of State, Minister of Ayush, and Dr. Bharti Pawar, Minister of State of Health and Family Welfare, Secretary Ayush Rajesh Koteta ji, DG HS Dr. Goyal ji, Medical Superintendent, all the additional Medical Superintendent of MS, Deans of All India Institute of Ayurveda, faculty is hosting us and provided us this space
for running the integrated health center through Ayush with the vision and mission to create the holistic treatment protocol, and this integration is patient-centric integration. लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, पेशेंट को यहाँ से आके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में ना जाना पड़े, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के पेशेंट के यहाँ आने के लिए दिक्कत ना हो. So this is under one umbrella, and All India Institute is also tertiary care, and it is the center of postgraduate research and training center, which is center of excellence to provide the role model for others to follow. And the similar is the Safdarjung Hospital, where care with compassion, the model what we have established, with the main objective is to initiate co-location of practitioners of Indian system of medicine to provide joint multidisciplinary care, panchakarma therapies, that is biopurification and concomitant medications, yoga, lifestyle, and other medications. So thank you, sir, for providing us the infrastructure, and it is, हम ये कहते हैं कि 6000 पेशेंट को इंटीग्रेशन से हमने अभी 8 जुलाई से शुरू किया और थेरेपी दी 3000 लोगों ने की. सफदरजंग हॉस्पिटल और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने हमें जगह दी. हम ये चाहते हैं कि हम अपने काम से दिल में भी हमें जगह दीजिए, क्योंकि फ्यूचर ऑफ द मेडिसिन इज इंटीग्रेशन. एंड आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर सर टू प्लीज ब्लेस अस with your wording, sir, because I know that you have to attend some another function. So Sri Sarbananda Sonowal ji, if you can bless the gatherings with your words of wisdom. Thank you, sir. सबसे पहले मैं आज इस अवसर के लिए हमारी बड़ी कमठ और काबिल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मंजूपाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपने हमें ये इंटीग्रेटिव डिपार्टमेंट यहाँ शुरू करने के लिए जगह दी. और आप सबको मालूम है, हमारे देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की निर्देश के मुताबिक हम दोनों मंत्रालय इस इंटीग्रेटिव सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं, और इसके फलस्वरूप आज ये उभर के आए हैं. तो इसलिए मैं मानता हूं कि अगले दिनों में ऐसे ही एम्स में भी हमारी कल चर्चा हुई. हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के निर्देश के मुताबिक डायरेक्टर एम्स ने हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के साथ बातचीत की और एक समझौता पर सहमत हुई. तो मुझे लगता है ऐसे हम जमीनी हकीकत से जोड़ के हमारी देश की जनता को हम निष्ठापूर्वक समर्पित भावनाओं से सेवा करते जाएंगे. और जैसे हमारे तनुजा नासर ने बताया, इस डिपार्टमेंट में क्या क्या व्यवस्था रखा गया है, तो मुझे लगता है कि हमारी लोगों के लिए ये व्यवस्था खड़ा की गई है. और अगली दिन में मेरा मानना है कि निश्चित रूप से ऐसे ही देश भर में मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन दोनों को हम आगे बढ़ने का काम करते रहेंगे. आप सबको फिर से मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप ऐसे ही सहयोग करते रहिएगा, कि अगले दिनों में हमें बहुत कुछ करना है देश के अंदर. और आप लोगों को ये बात बताते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस होता है. माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आज हेल्थ सेक्टर में जो प्रगति हासिल की है, और इस सिलसिले में मनसुख भाई ने और भारती बहन ने जैसे मेहनत की है, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम भविष्य में भी ऐसे ही मिलकर हम अपने मकसद जनता के लिए, समाज के लिए पूरा करने के लिए हम निष्ठापूर्वक काम करते रहेंगे. इसी शब्दों का साथ फिर से आप सबको प्रणाम देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ. धन्यवाद. जय हिंद. Leaving the dais now. Sir. Requesting Director Audience to provide with the This memento represents Urdhvam Moolam Agashyatam Ashwattham Prahurubhyam, the words of Bhagavad Gita. लगातार हमारे मीटिंग हो रहे थे, पिछले साल भर में अनेक मीटिंग्स हुई और हमेशा यही दोनों मिनिस्टर ने, माननीय मनसुख भाई ने और माननीय सोनोवाल जी ने हमेशा यही एक एजेंडा रखा कि हमने इंटीग्रेटेड मेडिसिन को लेके आगे बढ़ना है, काम. जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कहना है, हमारे देश का ज्ञान है, विज्ञान है, संस्कृति है,
उसे हमें विश्व कल्याण के उद्देश्य से सार्थक कराना है और उस उद्देश्य के साथ आयुर्वेद का महत्व जो आज एक प्रभावी माध्यम है उसे पारंपरिक चिकित्सा का हम उपयोग करें। और मुझे ये जानकारी देते हुए खुशी होती है कि सफदरजंग एक ऐसा हमारा पुराना हॉस्पिटल है जो 1942 में स्थापित हुआ और जहां उसके इतिहास में 204 बेड थे, आज वो सबसे ज्यादा बेड भारत भर में अगर आज वो रिकॉर्ड पे जा रहे हो तो 1500 से अधिक बेड आज हमारे यहाँ पे सफदरजंग में है। टर्शरी केयर के लिए बेस्ट सर्विसेज हमारी सफदरजंग हॉस्पिटल में दी जाती है। एनुअली हमारे 10 लाख से भी ज्यादा ओपीडी पेशेंट्स आते हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ दिल्ली या हमारे पड़ोसी राज्य नहीं तो पड़ोसी देशों को भी सफदरजंग अस्पताल ने हमेशा सेवा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हमारे आयुर्वेदिक इंटीग्रेटिव मेडिसिन सेंटर के इस उद्घाटन पर मैं आशा करती हूँ कि जरूर इसका उपयोग हमारे आने वाले दिनों में अनेक पेशेंट्स को अच्छा साबित होगा। एक अच्छी ओपीडी के माध्यम से, पंचकर्मा की यूनिट से और डाइटरी कंसल्टेशन के माध्यम से, जैसे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हम अभी सिर्फ डिसीज के बारे में या हेल्थ का प्रॉब्लम होने के बारे में नहीं सोचेंगे तो वेलनेस में हम ज्यादा काम करेंगे। ये आगे जाके पहले पुराने टाइम में कंसेप्ट था कि एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेदा, प्रधानमंत्री जी ने अब नया संकल्प लाया है। अब कंसेप्ट है आयुर्वेदा के साथ एलोपैथी, एलोपैथी के साथ आयुर्वेदा। तो ये हमारा ग्लोबल लेवल का वसुधैव कुटुंबकम की हम परिभाषा करते हैं, तो यह संकल्पना महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से हम काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। इंटीग्रेटिव मेडिसिन का आज लॉन्चिंग के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे साथी मंत्री डॉक्टर भारतीबेन, डॉक्टर महेंद्र भाई, सभी अधिकारीगण उपस्थित भाई एवं बहनों, आज सफदरजंग हॉस्पिटल में इंटीग्रेटिव मेडिसिन का एक डिपार्टमेंट का प्रारंभ हो रहा है। वैसे तो मुझे बताया गया कि हम फॉर्मल लॉन्चिंग आज कर रहे हैं, लेकिन शायद 3-4 महीने से बन के तैयार था और पहले चरण में सब भी हमारे यहाँ सतत मेहनत करने वाले हमारे डॉक्टर्स, उसमें से ज्यादातर लोगों ने विरेचन करवा लिया, ट्रीटमेंट करवा लिया स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए। वेलनेस इस समय की मांग है। अपने आप के प्रति, अपने स्वयं के हेल्थ के प्रति जागरूक रहना इस देश की वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत आवश्यक है। कोई भी देश समृद्ध देश तब हो सकता है जब एक देश के नागरिक स्वस्थ हो। और पहली बार प्रधानमंत्री जी ने डेवलपमेंट के साथ हेल्थ को जोड़ा। स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है और स्वस्थ समाज समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है। समृद्ध राष्ट्र के लिए देश के हर नागरिक स्वस्थ रहे, ये बहुत आवश्यक है। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए आज तक हमारी ट्रेडिशन यही थी कि हम बीमार हुए, हम हॉस्पिटल गए। जी नहीं, हम बीमार ही ना हो, उसके लिए क्या कर सकते हैं? मोदी जी ने विचार किया कि वेलनेस बहुत आवश्यक है और 2018 में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने के लिए एक कार्यक्रम घोषित किया। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जब अनाउंसमेंट हुआ था तब कहा गया था कि दिसंबर 2022 के अंत तक हम 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्रिएट करेंगे। ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर वेलनेस के लिए कार्यक्रम चलाया जाएगा। हेल्दी रहने के लिए क्या हेल्दी फूड होना चाहिए, उसके लिए सेशन आयोजित किया जाएगा। वहां योगा का अभ्यास किया जाएगा, वहां स्क्रीनिंग किया जाएगा। ऐसी कई एक्टिविटी, 17 टाइप की एक्टिविटीज
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आज हो रही है। 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आज देश के नागरिक की वेलनेस को सुदृढ़ करने के लिए काम में जुटे हुए हैं। वैसे ही देश में मॉडर्न मेडिसिन हो, ट्रेडिशनल मेडिसिन हो या कोई भी टाइप की मेडिसिन हो, कोई सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। कोई डॉक्टर एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। एक बार जो तय हो तो ऑल टाइप ऑफ मेडिसिन सिस्टम एक दूसरे के पूरक कैसे बने। हमारे पास इतनी बड़ी विरासत है, हमारे पास ट्रेडिशनल मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इतनी पुरानी चिकित्सा पद्धति है जो हमारा शास्त्रों ने हमें विरासत में दी है। मेडिसिन ऑफ सिस्टम की व्यवस्था खड़ी हो, सभी एम्स में हो, और उसको देखते हुए आज जिस तरह से मेरी हेल्थ हॉस्पिटल चेन के साथ बात हो रही है, हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए एक्सपर्ट लोगों से बात हो रही है, वेलनेस से जुड़े हुए लोगों से बात हो रही है, वो बता रहे हैं प्राइवेट मेडिकल सेक्टर भी आज इंटीग्रेटिव मेडिसिन की ओर आगे बढ़ने लगा है। हमें जॉइंटली ये व्यवस्था को आगे बढ़ाना है ताकि देश के नागरिकों को हम स्वस्थ कर पाए, और WHO का भी यही एफर्ट है। आज WHO इंडिया इंटीग्रेटिव मेडिसिन पर काम कर रहा है, उसकी सराहना कर रहा है। हमारे डॉक्टर कम्युनिटी को मैं अभिनंदन देता हूं। आपने जो मेहनत की है, एफर्ट किया है, आपका जो कमिटमेंट है, मुझे पक्का विश्वास है कि आने वाले दिनों में देश के नागरिकों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद।